Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the four major abiotic factors. हमने abiotic factors की बात की थी that there are four types of abiotic factors which will be mainly regulating or mainly affecting the different types of habitat. हैबिटेट अलग हो सकते हैं पर ये सारे ही हैबिटेट वेरी क्यों करते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट एज वेल एज द soil conditions. So these are some of the conditions which will be affecting the habitat, and obviously when they affect habitat it is also going to affect the individuals or the organisms living in that habitat. हमने टेम्परेचर की बात की थी that some organisms are able to survive in very wide range of temperature, right? And some of the organisms are limited, that is they can survive only in a limited range of temperature. Same way, some of the organisms were able to survive in extreme saline conditions also, whereas there will be organisms which are limited to a narrow range of salinity, which shows that every organism has tried to at least cope up with the abiotic factors, but after a certain limit they are not able to cope up with this environmental conditions. So response to abiotic factors, which we are going to discuss, indicates that there is an organism, some organisms which can live in wide range, but there are some organisms which are able to survive only in narrow range. So it is very important for them to adapt to those surrounding abiotic factors. And that is how the organisms will be responding. Some will be adapting themselves, some will be developing some type of change in the body so that they can cope up with the stressful conditions of the environment. Right? So that is what we are going to discuss is response to abiotic factors. हमें abiotic factors तो पता है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये एबायोटिक फैक्टर्स है और इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे, राइट? कई ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स को लो टेम्परेचर की जरूरत होती है. Some of them are showing photoperiodism at a higher intensity of light, some of them show at lower intensity of light. So there is quite variation that is observed. And due to this variation, it is very important for an organism to adapt itself to survive in the environment. So that is what we are going to discuss is response to abiotic factors, right? अब कोई भी हैबिटेट है उसमें abiotic factors कभी भी constant रहते नहीं है. Abiotic factors are constantly changing, right? हम जैसे कि even if we talk about India, do we have the constant abiotic factors throughout the year? No. The intensity of light fluctuates. The intensity of temperature fluctuates, right? If we talk about water content, obviously in summer, all the rivers and everything will be deprived of water. So amount of water also decreases at certain times, right? तो ये सारे factors ऐसे हैं जो कोई भी habitat में change होते रहते हैं. तो ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है? दे हैव टू कोप अप विद दीज एवर चेंजिंग एबायोटिक फैक्टर्स. कभी पानी ज्यादा मिला तो भी और कभी पानी कम है तो भी उन्हें क्या करना होता है? अडेप्ट करना पड़ता है, कोप अप करना पड़ता है फ्रॉम दिस स्ट्रेसफुल कंडीशंस. So what is this need? Why is external environment influencing so much? Right? External environment का हम पे इतना फर्क क्यों पड़ता है? Because a change in the external environment can lead to change in the internal body conditions also, right? तो हम पहले इसके introduction की बात करते हैं that first thing we need to mention is the abiotic factors. The abiotic factors of a habitat are always changing. एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, कोई भी हैबिटेट है, ठीक है, हम एक छोटा सा एरिया भी ले लेते हैं तो उसमें कभी भी एबायोटिक फैक्टर्स कांस्टेंट तो रहेंगे ही नहीं, राइट? लाइट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ वाटर है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज, right? Depending upon the seasonal variation, depending upon the precipitation, this is going to change. So abiotic factors are always changing, and thus
organisms have to cope up with ever changing stressful conditions. What does the organism has to do? With the change in the abiotic factors, the organisms have to undergo several changes. They have to undergo several changes and they have to cope up with this stressful condition. If there is high scorching air heat, then also they have to adjust, and if there is very high cold, then also they have to adjust with whatever are the changes in the environment. So why does the external environment affect the organism? राइट क्यों ऐसा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने पर हमारी बॉडी में हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, राइट? तो ओवर अ मिलियन इयर्स ऑफ टाइम इट हैज बीन नोन दैट, इतने सारे सालों में इतनी चीज तो पता चल गई है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. व्हाई? Because our enzymes are able to function only at a specific temperature range. अगर बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गया, then there will be alteration in the physiological activities occurring in our body, right? So here it is important over millions of years several organisms have tried to attain a constant body temperature and osmotic concentration to perform physiological activities at maximum efficiency. Physiological activities at maximum efficiency, which is going to ensure the fitness of the species. हम कैसे बोल सकते हैं कि दिस स्पीसीज इज वेरी फिट, राइट? फिट फॉर द सर्वाइवल. तो हम फिट तभी हो सकते हैं व्हेन वी आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. So those organisms who are able to maintain a constant body temperature, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है नियरली, और बाहर के एनवायरनमेंट के चेंज होने पर भी हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता. सो ओनली वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ने ट्राई किया है टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बट आउट ऑफ देम वेरी फ्यू आर सक्सेसफुल इन डेवलपिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, राइट? सो दिस कंडीशन, if this happens, then what will happen? The physiological activity of the body is going to be happening at a maximum efficiency. Maximum efficiency से हम सारा ही काम कर पाएंगे, हमारे सारे एंजाइम्स फंक्शन कर पाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स जो है एक नैरो टेम्परेचर लिमिट पर ही काम करते हैं. तो अगर वो नैरो टेम्परेचर लिमिट से चेंज हो गया तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल स्टॉप. Enzyme activity will stop. This indicates that overall activity of the body will stop. So to ensure the fitness, हम कैसे कह सकते हैं कि एक स्पीसीज जो है वो completely fit है? वो फिट तभी कह सकते हैं जब वो कांस्टेंट इंटरनल बॉडी कंडीशंस मेंटेन कर सके, राइट? इसीलिए ऐसा कहा है कि ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, इतने सारे सालों में ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने ट्राई किया है टू डेवलप अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस. व्हाई? Because if there are constant internal conditions, the physiological activity of the body is going to run at a maximum pace. And when it runs at a maximum pace, this ensures that the species is completely fit, right? That is for the survival. तो ये बहुत ही important चीज यहाँ पे लिखी है. So, it is important to maintain constant
internal conditions, or you can say environment, and this is simply referred as our homeostasis. होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट? चलो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस. बाहर का टेम्परेचर जब 25 होता है तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है. पर मान लो कि समर में जब ये टेम्परेचर 45 डिग्रीज हो जाता है तो 45 डिग्रीज पे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट आउटसाइड वी आर नॉट एबल टू वर्क इन दैट मच एफिशिएंट मैनर एज वी वर्क एट 25 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली जब बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें भी हमारा क्या हो जाता है दैट ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर आउटसाइड अगेन वी आर नॉट एबल टू फंक्शन वेरी प्रॉपरली. सो इन ऑर्डर टू कोप अप विद दीज कंडीशंस व्हाट डू वी डू? We turn on an AC in the car or in our house so that we can work efficiently. हम क्या करते हैं, हम AC यूज कर लेते हैं so that extreme summer है तो हम क्या करेंगे, we can cope up with the surrounding high temperature environment. सेम वे अगर विंटर है तो हम हीटर्स यूज कर लेते हैं कार के अंदर सो दैट अगेन वी कैन मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर और हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. पर ये क्या हुआ, दिस इज डन बाय आर्टिफिशियल मीन्स, राइट? हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दिस मेंटेनिंग द टेम्परेचर इवन बाय द आर्टिफिशियल मीन्स, राइट? तो यही चीज है कि अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे तो ही हम एफिशिएंटली काम कर पाएंगे. A person working efficiently at 25 degrees Celsius might not be able to work efficiently at 45 or at 0 degrees Celsius. So the purpose is either use an air conditioner or use a heater in the extreme environment so that you can again work efficiently. But is it possible in nature for the organisms to do the same, right? We are humans, we can get an AC, we can get a car, and we can by artificially also fulfill our needs for coping up with the abiotic stress. हम कोप अप कर लेते हैं क्योंकि हम एसी इंस्टॉल कर सकते हैं, हीटर इंस्टॉल कर सकते हैं. पर नेचर में जो एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, क्या ये ऐसे चेंजेस कर सकते हैं? नो, right? So on the basis of this example we need to understand that there are different types of organisms which have developed different ways to cope up with the abiotic stress, and these type of organisms are known as regulators and conformers. इन्हें कहा जाता है regulators and conformers, right? So first we are going to talk about the रेगुलेटर. समझिए क्या कह रहे हैं. 25 डिग्री सेल्सियस पे हम मैक्सिमम काम कर पा रहे हैं, तो इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे हमें 25 पर ही काम करना है, तो हम समर में एसी यूज कर लेते हैं और विंटर में हीटर यूज कर लेते हैं ताकि हम हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर 25 रख सके एंड वी कैन वर्क एफिशिएंटली. बट एनिमल्स इन नेचर कैन नॉट डू सो. सो हियर इन ऑर्डर टू कोप अप विद दिस एबायोटिक स्ट्रेसेस, organisms have evolved different methods. So first type of organisms are the regulators. जब हम वर्ड यूज करते हैं रेगुलेटर्स, इसका मतलब ही ये होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स खुद के बॉडी टेम्परेचर को, खुद के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम है रेगुलेटर्स, राइट? सो रेगुलेटर्स, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन maintain a constant internal environment. What they can do? Maintain a constant internal environment. मतलब internal environment constant रख सकते हैं. Internal environment से यहाँ पे क्या मतलब है? Body temperature and amount of body fluids, that is your osmotic कंसंट्रेशन. ये दोनों ही चीज को ये रेगुलेट कर सकते हैं. रेगुलेट कर सकते हैं मतलब ये कैसे काम करेंगे? मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगे, एंड देयरफॉर दे विल बी द मोस्ट फिटेस्ट ऑफ ऑल, राइट? तो इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो रेगुलेटर्स में आ जाते हैं हमारे
mammals, birds, some lower vertebrates and rare invertebrates. Okay, so there are organisms, mammals जो है, mammals जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीसीज है, तो वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीसीज क्यों है? बिकॉज दे आर एबल टू हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद के बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल कंडीशंस को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकता है, तो ऑब्वियसली इट इज रिप्रोडक्टिवली वेरी फिट, physically very fit, and therefore it is going to leave more progenies as compared to any other species, right? तो ये जो organisms हैं, mammals हैं, birds हैं, कई vertebrates होते हैं, तो ये सारे ही organisms they are having a constant internal environmental conditions. So obviously abiotic factors जो है वो तो इनके लिए भी change होते ही है. They are also going to suffer from the abiotic stresses. So how do they cope up, right? तो cope up करने के लिए, for example जब हम mammals की बात करते हैं, humans की बात करते हैं, ठीक है? तो humans में क्या होता है? In excessive summer, or we can say when there is excessive heat, what do? We sweat profusely. मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, ठीक है? हमारे लिए भी एबायोटिक फैक्टर्स तो चेंज हो ही रहे हैं. हमारे लिए भी समर सीजन आती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है. हमारे लिए भी विंटर्स आते हैं जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. तो हाउ डू वी कोप अप? हाउ डू रेगुलेटर्स कोप अप विद दिस कंडीशंस? सो रेगुलेटर्स में पर्टिकुलरली ह्यूमंस की अगर बात करें, तो ह्यूमंस जब एक्सेसिव बाहर टेम्परेचर होता है तो क्या करते हैं? दे विल बी स्वेटिंग एक्सेसिवली, और स्वेटिंग होने की वजह से दैट इज व्हाट कॉल्ड इवोपरेटिंग कूलिंग. स्वेट निकल जाने की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है इट इज ब्रॉट डाउन. बॉडी टेम्परेचर इज ब्रॉट डाउन एंड देयरफॉर यू कैन सर्वाइव इन एक्सेसिव हीट. मान लो एक्सेसिव विंटर है, एक्सेसिव कोल्ड है, तो in excessive cold what do we do? Our body will shiver. Shivering will be generating heat. Shivering will be generating the heat. और heat generate होने से body temperature is brought back to normal, right? तो regulators जो हैं वो ऐसे organisms हुए जो खुद का body temperature और osmotic concentration maintain कर सकते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं. रेगुलेटर्स आर द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एग्जिस्टिंग. मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं थोड़े बहुत, और कोई इनवर्टिब्रेट्स हैं. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सब किस में आते हैं? रेगुलेटर्स में आते हैं. मोस्टली मैमल्स और बर्ड्स इन दोनों को रेगुलेटर्स में कंसिडर करते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखना बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, पर ये रखते कैसे हैं? तो उसके लिए एग्जांपल हम ह्यूमंस का लेते हैं. तो ह्यूमंस में जब बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं? एक्सेसिव स्वेटिंग. स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी वापस कूल हो जाती है और हम बॉडी टेम्परेचर को वापस धीरे से नॉर्मल ला सकते हैं. जब इन केस ऑफ एक्सेसिव कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो क्या करते हैं? हम शिवर करते हैं. शिवरिंग की वजह से क्या हो जाता है कि अगेन द बॉडी टेम्परेचर दैट इज अगेन गोइंग टू बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल बिकॉज बॉडी जनरेट्स हीट, राइट? इन अपोजिट टू इट प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर नॉट एबल टू रेगुलेट द टेम्परेचर. प्लांट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर एनिमल्स में yes, in animals it is possible, and this regulation is the reason for mammals to be dominantly distributed, whether it is Sahara desert or whether it is Antarctica. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने की वजह से ही मैमल्स हर जगह पे हैं. अगर आप सहारा डेजर्ट भी ले लो या आप एंटार्क्टिका भी ले लो तो भी हर जगह पे मैमल्स पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज दे ऑल आर रेगुलेटर्स. तो रेगुलेटर्स की तरह एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, दे आर कन्फॉर्मर्स. तो जो ऑर्गेनिज्म खुद के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, दे ऑल बिलोंग टू कन्फॉर्मर्स. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कन्फॉर्मर्स.
The next type of organisms are the conformers. So second, we talk about the conformers. As we said that regulators are the one which are able to regulate the external body conditions, right? Internal environment. Conformers are the one which are unable to regulate a constant इंटरनल एनवायरमेंट। मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद का बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते। मतलब विद द चेंजिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब विद द चेंजिंग सराउंडिंग एनवायरमेंट, बॉडी टेम्परेचर विल चेंज। With the change in osmotic concentration outside, their osmotic concentration also changes, right? तो body temperature जो है, body temperature changes with change in surrounding temperature. अगर बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ तो बॉडी में भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बाहर अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हुआ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑब्वियसली, तो बॉडी के अंदर भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इतना टाइम हो गया है तो क्यों ये सारे कन्फॉर्मर्स भी रेगुलेटर्स नहीं बन गए। Why it is that conformers are also not changing or not able to change to regulators। हमें पता है कि रेगुलेटर्स के पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कभी भी इंटरनल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। तो इतने बेनिफिट्स होने के बाद भी ये कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स में चेंज क्यों नहीं हो गए। कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स में चेंज इसीलिए नहीं हो पाते बिकॉज to develop a constant body temperature is an energetically expensive process। कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस को रखने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? फॉर एग्जांपल हम सबको गर्मी लग रही है, बट इज एवरीवन एबल टू अफोर्ड एन एयर कंडीशन? नो, देयर आर ओनली सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू अफोर्ड एन एयर कंडीशन एट द होम, whereas many people are still deprived of the home and they work suboptimally even at higher temperature, right? maximum efficiency से काम नहीं कर पाते पर काम करते हैं even at higher temperature। so here we will like to mention that the conformers do not change to regulators as thermoregulation is an energetically expensive process, right? थर्मोरेगुलेशन, खुद का टेम्परेचर अगर रेगुलेट करना है तो बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है? तो पहले हमने क्या कहा, कन्फॉर्मर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का इंटरनल कंडीशंस रेगुलेट नहीं कर पाते। बाहर टेम्परेचर बदलने पे बॉडी में भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बाहर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होने से बॉडी में भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो इतना मिलियंस ऑफ इयर्स पास ऑन हो गए हैं इवोल्यूशन के, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कन्फॉर्मर्स जो है वो भी सारे रेगुलेटर्स बन जाए। ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेगुलेटर बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब इतनी ज्यादा एनर्जी मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, रिलीज नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मॉल एनिमल्स की बात करते हैं जैसे कि श्रूज और हमिंग बर्ड, ठीक है, तो इनमें क्या होता है दैट स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैव लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, so they tend to lose the heat
very rapidly if external environment is cold. पोलर रीजन्स में क्या होता है, तो पोलर रीजन्स में बाहर एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है, और बहुत ज्यादा ठंडा रहने की वजह से ये जो छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे विल लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत ही कम समय में ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को लूज कर देते हैं. Now again to develop that energy is again requiring a large, again to develop that heat in the body requires a large amount of energy, and this is the reason why small sized organisms, small sized animals are not found in polar regions. राइट, देखिए क्या लिखा है मैंने, थर्मोरेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना मतलब बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, अब बहुत सारी एनर्जी तभी पॉसिबल है जब इनफ अमाउंट में फूड अवेलेबल हो. राइट, सर्वाइवल से भी ज्यादा फूड अवेलेबल हो तब हम एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि हर एक घर में एसी नहीं होता, वैसे हर एक कन्फॉर्मर रेगुलेटर नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इट इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस. अब इतनी सारी एनर्जी कन्फॉर्मर्स में डेवलप हो ही नहीं पाती. अब इतनी एनर्जी जब रिलीज ही नहीं होती तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द रेगुलर बॉडी टेम्परेचर. राइट, जैसे कि छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म है, हमिंग बर्ड है, श्रूज है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितना छोटा साइज उतना उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. मोर सरफेस एरिया मतलब बाहर ठंडी होने पर बॉडी इमीडिएटली सारी ही एनर्जी, हीट एनर्जी लूज कर देती है. नाउ व्हेन दे लूज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वेरी रैपिडली, उन्हें वापस रेगुलेट, वापस नॉर्मल आने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, तब वो इतनी हीट जनरेट कर पाएंगे. और जब वो इतनी हीट जनरेट कर पाएंगे इट विल बी अ लॉन्ग टाइम. Right, so that is the reason why small size animals are not found in polar regions. Polar regions में छोटे साइज के एनिमल्स होते नहीं है, मोस्टली बड़े ही साइज के एनिमल्स होते हैं. So this shows that internal environment constant जो है वो एक्सपेंसिव भी है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है. जितना इम्पोर्टेंट है उतना ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है. इसीलिए सारे कन्फॉर्मर्स जो है वो रेगुलेटर्स में चेंज नहीं हो जाते. Now if there is a condition in which stressful conditions exist for a small time, ठीक है, कोई ऐसी भी प्लेसेस होती है जहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं पर वो बहुत ही छोटे समय के लिए है, तो इन केस में एनिमल्स अंडरगो टू मोर टाइप्स ऑफ चेंजेस. राइट, सो इफ द स्ट्रेसफुल कंडीशंस exist for short duration, stressful conditions exist for a short duration, तो एनिमल्स क्या करते हैं, then the animals can be either migrators or suspenders. तो migrators मतलब these animals will be migrating to more hospitable environment and return back when condition becomes normal. तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो थोड़े समय के लिए कहीं माइग्रेट करके चले जाते हैं. कहाँ चले जाते हैं, तो टू अ प्लेस विच इज मोर हॉस्पिटेबल, जहाँ पे वो और अच्छे से रह सके, और आफ्टर दैट पीरियड इज ओवर दे अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल प्लेस. राइट, तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, दैट इज द बर्ड्स जो होते हैं वो टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए माइग्रेट करके दे गो टू सम अदर प्लेस. राइट, Keolado National Park that is located in Rajasthan. It is a site for, यहाँ पे आप याद रखना, Keolado National Park which is located in Rajasthan. It is a site for many migratory birds. Site for migratory
birds from साइबेरिया, राइट, नॉर्दर्न प्लेसेस पर से यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं। भरतपुर जो है यहाँ पे कियोलाडो नेशनल पार्क है वहां पे। तो ये माइग्रेटर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं। And when the conditions turn back to be normal, they again come back to their place. Just like हम summers में कहाँ जाते हैं? We go to northern places because it is very cold over there, right? तो हम summers को heat को beat करने के लिए हम जैसे picnics या trips पे जाते हैं to the north side, वैसे ही birds are also going to migrate to some other place which is more hospitable to survive for some distance, for some duration. Okay? तो एक होते हैं migrators और दूसरे होते हैं सस्पेंडर्स। तो सस्पेंडर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि कई बैक्टीरिया, कई फंजाई क्या करते हैं, स्पोर्स डेवलप करते हैं, डेवलप स्पोर्स। तो स्पोर्स जो होते हैं दे कैन सर्वाइव स्ट्रेसफुल कंडीशंस, राइट। और जब फिर वापस नॉर्मल कंडीशन आएंगी द स्पोर्स विल अगेन ग्रो इनटू द बैक्टीरिया और द फंजाई। तो बैक्टीरिया या फंजाई जो है वो अपने बाहर लेयर्स डेवलप कर देते हैं और स्पोर्स बना देते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो हार्मफुल स्ट्रेसफुल कंडीशंस में स्पोर्स रहेंगे। अगेन व्हेन मॉइस्चर और ह्यूमिड टेम्परेचर अवेलेबल है तो वापस स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे इनटू द ऑर्गेनिज्म, राइट। वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स विल बी डेवलपिंग व्हाट, सीड्स बना देते हैं एंड सीड्स विल बी फॉर कोपिंग अप द डोरमेंसी पीरियड में ये सीड्स रहेंगे। अगेन व्हेन द एनवायरनमेंट विल बी फेवरिंग द सीड्स विल बी ग्रोइंग इनटू द न्यू प्लांट, राइट। तो सीड्स डेवलप कर लेते हैं। कई बार ये सीड डिस्पर्सल के स्ट्रक्चर्स भी बना देते हैं ताकि ये सीड्स डिस्पर्स भी हो जाए and they can grow when the normal conditions, water and everything is available. तो किसी में सीड्स बना देना, किसी में स्पोर्स बन जाना, that is what suspenders. कई ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट नहीं कर पाते तो उसकी जगह पे वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिख रही हूँ, when you read it from your textbook you will be able to know, ठीक है। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हाइबरनेशन होता है समर विंटर स्लीप और एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। तो दोनों ही कंडीशंस में जैसे कि बेर जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, तो पोलर रीजन्स में रहते हैं, बट व्हाट डू दे डू, हाइबरनेट इन द विंटर्स। एस्टिवेशन समर्स में होता है, जब एक्सेसिव समर होती है तो छोटे जो स्नेल्स होते हैं और अर्थवर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, दे अंडरगो अ समर स्लीप, सो दे अंडरगो एस्टिवेशन। तो कई बार स्पोर्स बनाना, कई प्लांट्स का सीड्स बनाना, ये सब क्या है, एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए। जू प्लैंक्टन्स अंडरगो अ सस्पेंडेड ग्रोथ कॉल्ड डायपोड्स। जू प्लैंक्टन्स अंडरगोज अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ जिसे कहते हैं डायपोड्स। और इसमें ये जू प्लैंक्टन्स जो है वो पानी के लेयर के नीचे चले जाते हैं एंड देन आफ्टर दे लिव देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, when the temperature becomes normal they come up again on the surface. तो zooplankton है, तो ये सारे organisms जो है they show suspended type of growth, right, suspended type of ability to cope up with the environmental conditions. तो चार तरह के organisms हुए, regulators, conformers, migrators and suspenders. So that is the topic, response to abiotic factors. In the next lecture we will talk about adaptations.